YouTube channel Easy Peasy Learning. Okay, so in today's video we are going to learn or we are going to understand a new topic, scientific notation. In our previous videos, in our last videos, we have covered almost complete or entire chapter of powers and exponent. Only a part is left, that is scientific notation, and after doing this, after understanding this, you will be clear with your powers and exponents. Okay, so without wasting a minute, let's get started. First of all, we come across a large numbers or a small numbers. Small numbers is easy to read, easy to write, but large numbers are very difficult for us to read and write. For example, distance between Earth and Sun. What is the distance between Earth and Sun? It is 15 crore kilometer. It's 15 crore kilometer. So this is a very large number. You cannot remember how many numbers of zeros are there or what is the number. So the form in which this type of long numbers or long numbers are expressed in a short form, that is known as scientific notation or standard form. When the numbers are expressed in decimal form, then they are known as scientific notation or standard form. In this scientific notation, the numbers which are expressed, they are between 1.0 to 10.0. Then the power of 10, that means in the form of power of 10. Then these type of equations or expressions are known as scientific notation or standard form. Then the way of writing this equation is k into 10 to the power n, means where k is greater than or equals to 1, k की value always greater than or equals to 1 रहेगी, but smaller than 10, मगर वो 10 से छोटी रहेगी, means it will be between 1 to 10. Simple. और n जो रहेगा, यहाँ पे n क्या है? n एक इंटीजर है, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा. Is that clear? Okay, so I was telling the distance between Earth and Sun is 15 crore kilometer. Now we'll be writing this number as k into 10 to the power n. इस फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? Always first 15 तो ले ही नहीं सकते. रूल क्या है? रूल है कि जो k की वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा या उसके इक्वल होगी या 10 से कम होगी. तो विल टेक इट एज 1. यहाँ डेसिमल लगाएगी. नेक्स्ट नंबर इज 5. फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगा देना. ऑलवेज याद रखना. अगर आपको ये नहीं भी याद है, मान लिया आपको 95,00 दिया है, तो अब इसका कैसे करेंगे? याद नहीं आ रहा है ना, तो जो फर्स्ट डिजिट होगा यहाँ से फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड जो आपका फर्स्ट डिजिट होगा, उसके बाद आप डेसिमल लगा देना. उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे एक्सेप्ट 0, यहाँ पे जीरो को लीव करेंगे तो सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, वो 5 लिख दिया. सिमिलरली यहाँ पे जीरोस को एक्सक्लूड कर देंगे तो 5 आ रहा है, 5 लिख दिया. इनटू फिर वो पावर ऑफ 10, मतलब 10 की पावर में रहेगा, इनटू 10 कंपल्सरी है, इनटू 10. अब पावर ये आएगी कि डेसिमल के बाद जितने भी जीरो और डिजिट्स है उन सबको आप काउंट करेंगे. वो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे डिजिट्स और जीरो इंक्लूड करके 8 टोटल डिजिट्स आ रहे हैं, तो रेज टू द पावर 8 किलोमीटर. This is what the teachers tell you, but if you want a most simple form to write this, so आप ऐसे लिख लो कि मान लो यहाँ पे आपका डेसिमल है. जस्ट सपोज आपका डेसिमल सबसे लास्ट में है. अब आपको लिखना कैसे, आपको याद नहीं आ रहा पावर कैसे कितने लिखे, तो जस्ट स्टार्ट मूविंग टू योर लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. जो आप लेफ्ट में आओगे तो जो आपका
डिजिट बचेगा लेफ्ट में आते वक्त, जब लास्ट डिजिट जो बचेगा जस्ट उसके पहले डेसिमल को एंड कर देना। आपने कितने जंप लिए यहाँ तक आने में? 8, सो ये पावर विल बी 8। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका डेसिमल यहाँ है, लेट्स जंप ऑन 1 2 3 4 4 जंप लिए आपने यहाँ डेसिमल लाने में, तो इंटू 10 to the power 4। इज दैट क्लियर? This is what the scientific notation is and the method of writing scientific notation। अब scientific notation में आपको अगर क्वेश्चन दिया है उसको पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में दिया है और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो लेट्स कम ऑन टू दैट। साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास दो टाइप्स आते हैं। पहला तो विच आई टोल्ड यू, ओके। अब सपोज वी आर टेकिंग अ न्यू नंबर, लेट्स टेक 7, 2 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो लेट्स ट्राई आवर मेथड, ठीक है। we are having decimal here, okay, let's move to our left hand, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जंप लिए, तो इंटू 10 to the power 9, ये डन। अब फर्स्ट डिजिट नोटेड डाउन, डन। फिर डेसिमल लगा दिया। अब इसके बाद से जितने डिजिट्स है, 0 को छोड़ के जितने भी डिजिट्स है वो लिख दो, बट हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग ओनली 1 डिजिट, दैट इज 2, सो दिस विल बी योर आंसर। 7.2 into 10 to the power 9 is your answer. Now let's try a new question. If you are given 0.00000008, अब ये तो ऑलरेडी डेसिमल्स में है, अब इसको कैसे चेंज करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करें? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। अब डेसिमल को आपको मूव करना होगा राइट हैंड साइड, इंटू 10, ये लिख लेना क्योंकि ये तो आना ही आना है। लेट्स स्टार्ट मूविंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले डिजिट के जस्ट बाद डेसिमल आएगा। रिमेंबर, फर्स्ट डिजिट आपके पूरे नंबर में फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद डेसिमल आएगा। रिमेंबर, कितने जंप लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिए, रेज टू द पावर 8। अब पहला डिजिट कौन सा आ रहा है? भले 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 0 के बाद पहला डिजिट 8 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 8। सपोज आपका यहाँ पे 294 ऐड होता, तो अब क्या करते? सॉरी वन थिंग इज लेफ्ट बाय मी, दैट अगर आप राइट में ले जाओगे, राइट में डेसिमल्स ले जाओगे तो ऑलवेज पावर नेगेटिव आएगा, लेफ्ट में लाओगे तो पावर पॉजिटिव आएगा। रिमेंबर, ठीक है। अब अगर आपको ये इक्वेशन दी है तो कैसे करेंगे? ये तो आपने पहला डिजिट लिख दिया, 0 के कंटिन्यू करते गए, 0 0 0 8 पहला डिजिट है, ठीक है, डन। डेसिमल लगा दिया, वी नो कि पहले डिजिट के बाद डेसिमल आने ही आने। अब थोड़ी स्पेस लीव करके इंटू 10 लिख दो। अब स्टार्ट मूविंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, रेज टू द पावर 8 -8। बाकी के डिजिट्स यहां आ जाएंगे, चेंजेस कुछ नहीं हुआ। बट अगर आपका क्वेश्चन 829400000 ऐसे दिया रहता तो आपका चेंजेस आता। कैसे लिखते इसका आंसर? सबसे पहले तो फर्स्ट डिजिट कॉपी डाउन करा, डेसिमल लगा दिया। अब अपने लेफ्ट अपन डेसिमल मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 के जस्ट पहले डेसिमल आके रुक गया 10 टाइम्स, तो इंटू 10 टू द पावर 10 और 294 डन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब
इन्हीं सब आंसर्स को वापस इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, दैट विल बी लुकिंग। ये सारे अपने आंसर्स थे। मेन थिंग टू रिमेंबर, अगर आप राइट में जा रहे हो डेसिमल को लेके तो माइनस लगाना मत भूलना, अगर डेसिमल को लेके लेफ्ट में आ रहे हो तो ऑलवेज पॉजिटिव पावर रहेगा। दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स मार्क्स आर डिडक्टेड हियर ओनली। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8.294 into 10 to the power 10. Okay, so now we'll be converting it back into its usual form. This is scientific notation form or standard form, and again converting it back to usual form. अब कैसे करेंगे? Okay, 7.2 into 10 to the power 9. ठीक है, अब we know कि अगर पावर पॉजिटिव है तो मतलब अगर पावर पॉजिटिव है तो आपका स्टार्टिंग डिजिट से होगा, एंड 0 से होगा। 72 तो लिख ही दिया, ठीक है। 0 कितने लगेंगे? 0 यहाँ पे 9 लगेंगे क्या? नो, 0 9 नहीं लगेंगे, क्योंकि यू रिमेम्बर अपन 0 डेसिमल को मूव करते हुए लाए थे तो डिजिट्स जो बीच में आ रहे थे उसको भी काउंट कर लिया था। पहले डिजिट तक लाने के लिए अपन ने डिजिट्स बीच में जो आ रहे थे उन्हें भी काउंट करा था। तो अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? ओनली 1। तो यहाँ पे पावर में से 1 डिजिट माइनस करेंगे, मतलब 8, तो 8 zeros लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8.294 into 10 to the power -8। अब -8 है तो पहले डेसिमल 0 देन डिजिट, क्या फॉर्म रहेगा? डेसिमल। तो डेसिमल के पहले 0 लगा देना, इट विल बी बेटर। अब जीरोस आएंगे, फिर डिजिट्स। अब देखते क्या करें, तो 8, फिर यहाँ पे क्या करा था अपन ने? यहाँ पे अपन ने डिजिट्स काउंट नहीं करे। डू यू रिमेम्बर? अगर आपका कोई इसका आंसर नहीं, डोंट वरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। अगर आपका ये क्वेश्चन और डेसिमल यहाँ से मूव करा, यहाँ तक लाना था, यही लिया है, इन डिजिट्स को काउंट नहीं करा, सो यू विल नॉट बी डिडक्टिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द पावर। इसमें जितने पावर है सेम 0 लग जाएंगे। अब सेम एज इट इज डिजिट कॉपी कर दो। क्लियर? कंफ्यूजिंग है बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इट विल बी क्लियर। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो हमने डिजिट्स को भी 0 के साथ काउंट करा था, इसलिए जितने डिजिट्स हो गए पावर में से उतना माइनस करके फिर 0 लगाना। यहाँ पे अगर नेगेटिव है पावर तो हमने डिजिट्स काउंट नहीं करे थे 0 के बाद के, डेसिमल जहाँ लगा उसके बाद के डिजिट्स काउंट नहीं करे ना, सो विल नॉट डिडक्ट आर एनी डिजिट फ्रॉम द पावर। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ डिजिट्स पावर में से नहीं डिडक्ट करेंगे, इसलिए जितनी पावर है उतने 0 लगा देना और फिर डिजिट्स कॉपी डाउन करना। लास्ट क्वेश्चन इज 8.294 into 10 to the power 10। अब ये कैसे करें? इसमें माइनस तो है ही नहीं, मतलब कि इसमें आपका पहले डिजिट्स आएगा, तो डिजिट्स कॉपी डाउन कर दो पहले। तो अब 0 कितने आएंगे, तो उसको चेक करने के लिए पहले देखो कि यहाँ पे 3 डिजिट है, मतलब 3 डिजिट्स वी हैव काउंटेड व्हाइल पुटिंग द डेसिमल। तो वो 3 डिजिट्स आप अपने पावर में से डिडक्ट करेंगे। 3 डिजिट नहीं, 3 मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स थे यहाँ पे, तो एक 3 10 में से डिडक्ट करेंगे, मतलब 7, तो 7 0 विल बी एडिंग, देयरफॉर दिस विल बी द आंसर। होप इज दिस क्लियर? एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, एक्सपेंडेड फॉर्म सभी ने पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स बचपन से एक्सपेंडेड फॉर्म ही पढ़ा है मैथ्स में, और एक्सपेंडेड फॉर्म सबसे इजी रहता था, वी लाइक एक्सपेंडेड फॉर्म का नंबर नेम एंड ऑल। तो एक्सपेंडेड फॉर्म को पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में। किसको? एक्सपेंडेड फॉर्म और पावर
पावर नोटेशन फॉर्म को मिला के लिखना है. सपोज यू आर गिवन अ नंबर 7929478. डन. ये नंबर दिया है, चलो जीरो भी ऐड कर लेते हैं तो इट विल बी कवर्ड इन वन क्वेश्चन ओनली. आपको ये नंबर दिया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, वो भी एक्सपोनेंशियल पावर के. तो लेट्स सी ये कैसे करेंगे. इसको करने के लिए सबसे पहले तो देखो कितने डिजिट्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 मतलब 7 इंटू 8 zeros. ठीक है, डन. नेक्स्ट नंबर है 9, फिर 7 zeros. नेक्स्ट नंबर है 2, 6 zeros. नेक्स्ट नंबर है 9, 5 0. नेक्स्ट नंबर 4 है, तो ओह वेट, आई थिंक आई एम हैविंग अ सॉरी 1 2 3 4 5 6 7. एक एक जीरो डिजिट, एक एक जीरो रिड्यूस करना पड़ेगा. आई हैव काउंटेड अ 1 एक्स्ट्रा जीरो. 4 के साथ 3 जीरो बचे, देन 7 2 0, देन 0 तो एक ही जीरो आएगा बट स्टिल, और 8 के साथ 1. 8 इंटू 1. क्लियर. ये आपने तो पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर दिया, कुछ भी नहीं. नेक्स्ट स्टेप है 7 इंटू 10 लिखा. कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 जीरो है, रेज टू पावर 7. प्लस 9 लिखा, इसकी कितने जीरो है? 6, तो 10 रेज टू पावर 6. प्लस 2 लिखा इंटू 10 रेज टू पावर 5. प्लस 9 लिखा इंटू 10 रेज टू द पावर 4. प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3. प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 2. प्लस 0 में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0. तो हम इसको नहीं लिख रहे, विल एक्सक्लूडेड. लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो डायरेक्ट 8 पे जंप कर गए. अब 8 में तो एक भी जीरो नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 इंटू ओनली 8 और 8 इंटू 1. मतलब आपको करना क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के बाद जितने भी जो जीरोस रहते हैं उनको पावर नोटेशन में करना है. बाकी डिजिट्स को तो एज इट इज उतारना है, सिर्फ जीरोस वाले जो नंबर्स हैं उनको पावर नोटेशन में करना है. तो दिस विल बी योर आंसर फॉर एक्सपेंडेड फॉर्म इन पावर नोटेशन. Therefore, this completes your chapter, power and exponents. Each and every topic is covered.